السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، اور ناظرین آج پروگرام کے آغاز میں ہی چلتے ہیں محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف، جو ایک پریس کانفرنس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنید، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیشہ اپنے پروگرام میں ہماری عزت افزائی کی۔ کبھی ملتان تشریف لائیے۔ ضرور، آپ سے ملنے؟ نہیں، ہم تو آج کل لاہور ہوتے ہیں۔ ملتان کبھی تشریف لائیے، اور وہاں کا جو سون حلوہ ہے بہت مشہور ہے۔ تھینک یو۔ وہ کھا کے ہمیں بتائیے گا کہ کیا آج بھی اس کا ذائقہ ویسا ہی ہے جیسا ہماری جوانی میں ہوا کرتا تھا۔ سب سے پہلے تو میں اپنے معزز میڈیا کی وساطت سے اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ احساس دلانا چاہتا ہوں، یہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بجھانا چاہتا ہوں، یہ سنانا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستانی کسی کے سامنے بھی جھکنے والے، دبنے والے، ڈرنے والے نہیں۔ واہ جی واہ، شکر اللہ کا، آج شاہ جی کے سارے فکرے سمجھ آ رہے ہیں۔ میرے دوست، ہم نے اس لیے بھی سلاست سے کام لیا کہ آپ یہاں تشریف فرمائیں۔ قادر تو کام لیا۔ اگر کوئی خباثت کی تو ہم جہالت سے بھی کام لے سکتے ہیں۔ باطل سے ڈرنے والے ہو، باطل باطل سے ڈرنے والے، اے آسمان نہیں ہم 100 بار لے چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ واہ جی واہ۔ اسی للکار کے ساتھ شاہ محمود واہ کا بارڈر پہ پہنچا، ہاں بالکل بالکل۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا، واگا بارڈر پر منڈلانے والے بادلوں نے دیکھا، وہاں روزانہ کھلنے والے پھاٹکوں نے دیکھا، اپنے سر سے اونچی ٹانگیں لے جانے والے رینجر کے جوانوں نے دیکھا کہ شاہ محمود کی محبت میں پاکستان کا سٹینڈ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اور شاہ محمود کی ہی دہشت سے ہندوستان کا سٹینڈ بالکل خالی۔ ایک طرف دل دھرنے کو جگہ نہیں، اور دوسری طرف ہو کا عالم۔ شاہ جی آج تقریر کٹ کر رہے ہو، جن بہتے کٹ رہے ہو۔ تم نہیں سمجھو گے بیٹا، اور کیسے سمجھو گے؟ یہ ایکشن یہ جذبوں کو مہمیز دینے کے لیے کیے جاتے ہیں، اور اگر تم نے مہمیز پوچھا کیسے لکھتے ہیں تو یہ کب تمہاری کن پٹی پہ آئے گا؟ پوچھو پوچھو۔ ممیز لکھ لاگا، جو میں کمیز لکھی تھا وہ میں لکھ لاگا ممیز۔ اور جانے دے شاہ جی، سمجھ گئے، وہ سمجھ گئے۔ ہمیں اسے سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں، ہم جنہیں سمجھانا چاہتے ہیں وہ سمجھ چکے، بلکہ اسی وقت سمجھ گئے تھے جب شاہ محمود علامتی طور پہ بارڈر پر پہنچا تھا۔ پتہ چل گیا تھا ان بغیر پانی والے لوٹے کے سرجیکل سٹرائک کرنے والوں کو کہ بات بگڑ چکی ہے، شاہ محمود بارڈر پر آ گیا ہے، اب یہ طوفان بلاخیز ٹلنے کا نہیں۔ یار تو دسی بلاخیز، شاہ جی نے تو کاپی چک لیا آج۔ چپ ہو جاؤ شاہ جی، پلیز کنٹینیو۔ ابھی تو کب چکے آئے، زیادہ شوخی کرو گے تو پھر ات بھی چکاؤں گا۔ شاہ جی اس کو جوڑے، آپ بتا رہے تھے بارڈر پر جانے کا مقصد کیا تھا؟ ہاں، ہمارا شاہ محمود کا، اس پاکستان کے ثبوت کا بارڈر پہ جانے کا صرف ایک ہی مقصد تھا، انڈیا والوں کو یہ بتانا، نریندر مودی کو یہ باور کروانا کہ نواز شریف تو معصوم ہیں، مگر پاکستان کا آئندہ وزیر اعظم معصوم نہیں ہے۔ جی کیسا میں گلا گلا وچ وزیر اعظم بنیا ہوا۔
आया हूं बॉर्डर पे पहुंच के कि नरेंद्र, मत भूलो कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल पीटीआई के हाथों में है और पीटीआई तुम्हें इतना आसानी से नहीं शरारत करने देगी। और यही पैगाम हम रायवेंड मार्च में अड्डा प्लाट पहुंचकर दे चुके हैं। वही अड्डा प्लाट जहां से चंद गज के फासले पर इस नरेंद्र मोदी की 13 डिशों से तवाज़ु की गई थी। 13 डिशें। हल्ले मैदे विच सलाद ते चटनी नहीं पाई। अभी मैंने दही वाले कूंडों का जिक्र नहीं किया। हालांकि सब जानते हैं कि कश्मीरियों की दावत थी और कश्मीरियों का खाना दही के बगैर ऐसे ही है जैसे पुलिस वाला वर्दी के बगैर। नाओ दे च कोई जान रहती है, नाओ दा कोई टैका रहता है। चले शाहजी छोड़े, जो होना था वो हो गया। बस ये बता देगा कोई तब्दीली भी आएगी कि नहीं? ये अड्डा प्लाट तब्दीली के लिए ही गए थे, वहां कोई प्लाट देखने नहीं थे गए। मेरे भाई, तब्दीली तो अब नविश्ताए दीवार है। वाह शाहजी, ये दीवार भी ईटा नाली बन रही है। खुदा के लिए यहां सहाफी बिठाया करें, बीच मिस्त्री भी बैठे होते। यानी नविश्ताए दीवार ईटा नल बंदी है। हुन तो आप दस जुनेद सलीम दे सिर विच इट बंदी है कि नहीं? ये रायवेंड मार्च तब्दीली ही की ललकार था, तब्दीली की ललकार। ये शाह महमूद का वार, ये अवाम का तब्दीली पर इसरार। अब हमने निकाल ली है तलवार और इस तलवार के 2 होंगे शिकार, एक मोदी और एक उसका खामोश तरफदार। और इस बार से ना बचेगी मोदी सरकार और ना ही बचेंगे पनामा सवार। उमरा लंगियां पब्बा पार, उमरा लंगियां पब्बा पार। अच्छा शाह जी, वैसे लोग अब पीटीआई की क़यादत पे ये एतराज कर रहे हैं कि आपके पास कहने के लिए कोई नई बात नहीं है। मेरे भाई, जब इस मुल्क में जुल्म भी वही है, जालिम भी वही है, मजलूम भी वही है, तो नई बात कहां से करें? जब दुख भी वही है, दुखी भी वही है, दाखम भी वही है। दाखम क्या? भाई, अगर जुल्म का जालिम होता है तो अगर मैंने दुख का दाखम बना दिया है तो तेनू की दुख है। मैंने कभी पढ़ा नहीं। उन पढ़ लेंगा, मैं मार्केट छड़ देता है। शाह जी, लोग इस बात पे एतराज कर रहे हैं कि नई बात कहने के लिए कुछ है नहीं है। कारकुन आपके थक जाएंगे इलेक्शन से पहले। कारकुनानो छठ में खुद थक गया हूं। थक गए? मेरा मतलब है कि जलसों से थकने वाले ऐ आसमान नहीं हम। हर सड़क पे देख चुका है तो धरना हमारा। वाह 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 वाह। शाह जी, कई लोग कह रहे हैं कि आपका अंदर खाते मुकमुका हो गया हुआ है। कौन सा मुकमुका? मुकमुकाने वाले आसमान नहीं हम। अच्छा जी, क्या कर रहे हैं? शेर का सत्यानाश कर दिया आपने। सत्यानाश करने वाले आसमान नहीं हम। हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, एक अंदाजे के मुताबिक वतन अजीज में हर साल कमोबेश 7 से 10 हजार मरीज गलत अद्वियात खाने के बायस मौत के मुंह में चले जाते हैं। इसकी 2 बड़ी वजूहात, एक सेल्फ मेडिकेशन और दूसरा जाहिल अताई मुआलजों की भरमार। आज हमारे कटहरे में ऐसा ही एक नीम हकीम खड़ा। मोहतरम, अगर आप हमें बाइज्जत तौर पे वापस हमारे दवाखाने में छोड़ाएं तो वहां जाके हम आपको बताएंगे कि हमारे पास एक ऐसी दवाई मौजूद है जिसके इस्तेमाल से इंसानी रंगत निखर जाती है। इससे ज्यादा क्या निखरेगी? यानी ये निखरी हुई है। और क्या बिखरी हुई है?
भाई फिर आप हमें भी गलती से पकड़ लाए हैं। मैनू ना सबक पढ़ा, उधर जवाब दे। पुठियां दवाइयां दे दे, बंदे मारी जान दिया। वो तो पहले ही हमारे खिलाफ हैं। अभी उन्होंने बात की भी नहीं तो पहले ही काफी सारी गुफ्तगू उन्होंने नाजरीन से कर दी है। इधर 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 जरा तवज्जो फरमाएं। ये बताएं कि आपके पास कोई तिब की सनद मौजूद है? हाँ सनद है हमारे पास। हम पहले भी लेके आना चाह रहे थे, मौसूफ कह रहे थे कि नहीं सीधा वहीं चलिए, अगर आप इजाजत हमें मरहमत फरमाएं तो हम ले आते हैं जाके। एक मिनट, किस इदारे की है वो सनद? वो अलीगढ़ में एक तिब का कॉलेज हुआ करता था, वहां से ली थी। तो आप अलीगढ़ से फारिग तहसील हैं? नहीं हमारे दादा वहां से पढ़े हुए हैं। तो दादा की सनद आप चला रहे हैं? तो हमारे दादा की है तो हम क्यों नहीं चला सकते? दादा के मकान में अगर हम रह सकते हैं तो उनकी सनद नहीं चला सकते हम? अगर आप कहें तो लेके आए हम। शुक्र है ये कहता कि दादे दी साइकिल चला रहे हैं तो सनद क्यों नहीं चला सकता? नहीं किबला, जब जायदाद की तकसीम हुई थी तो मकान जिसमें हम मुकीम हैं और ये सनद जो हिकमत की दादा जान की थी, ये हमारे हिस्से में आई थी। खुदा के बंदे, दादा की सनद के सर पे हिकमत कर रहे हो तो फिर नतीजा यही निकलेगा जो मैंने बताया है। हजारों लोग तुम लोगों की गलत तशखीस और गलत इलाज की वजह से मारे जाते हैं। किबला ये तो आपने बता दिया कि हमारी दवाई की वजह से हजारों लोग वफात पाते हैं, ये भी तो बताइए कि हजारों लोग हमारे दवाखाने की वजह से सेहत भी पाते हैं। कोई आदाद शुमार है तुम्हारे पास? लाहौर के एक मारूफ फिजिशियन का ये कहना है कि हमारे पास 60% ऐसे मरीज आते हैं जिनका केस तुम लोगों की वजह से, गलत तशखीस और गलत इलाज की वजह से पूरी तरह बिगड़ चुका होता है। जी ये किन्होंने फरमाया है? ये लाहौर के एक मारूफ फिजिशियन से मेरी बात हो रही है। ये लाहौर का एक मारूफ हकीम आपको बता रहा है कि हमारे यहाँ 60 क्या 70% लोग ऐसे भी आते हैं जो आगे हमें ये कहते हैं कि भाई हमें डॉक्टर की दवाई से आराम नहीं आया, हमें दवाई दीजिए। यूं भी तो होता है। हकीम साहब कितने खलो के गल करने वाली दवाई है तुहाडे को? हाँ वो भी है। ते आप खाओ, कदी है नहीं जा रहे, कदी है नहीं जा रहे। भाई खुद खा ले तो पैसे कौन देगा हमें? हकीम साहब इंतहाई लायानी किस्म का जवाब दिए। जो आदाद शुमार मैं बता रहा हूँ वो तो ऑथेंटिक है, आप अपने मतब पे बैठ के खुद ही अपनी तशहीर करते जाते हैं। भाई देखिए बात ये है कि हम तो आपको ऐसे कई एक मरीजों से मिला सकते हैं जो हमारी वजह से, हमारी दवाई की वजह से सेहत याब हुए हैं। आपने ये जो अभी बात की है लायानी वाली, ये देखिए हमारी इज्जत पे हमला किया। नहीं, इज्जत पे हमला नहीं किया। देखें, लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की सेहत का मामला है। आप पर सबसे बड़ा एतराज ये है कि आप अपनी देसी अद्वियात में स्टेरॉइड्स मिलाकर देते हैं जिससे फौरी तौर पर कुछ वक्त के लिए दर्द की शिद्दत में कमी वाक़ हो जाती है और मरीज समझता मैं ठीक हो गया हूं। भाई देखिए कोई और मिलाता होगा, हम तो नहीं मिलाते। हम आपके इस इल्जाम से नाराज हो गए हैं बस। हकीम साहब गिटारा तुसी की कड़मास घोड़ी खेल रहे हो? भाई कड़मस कोड़ी नहीं खेल रहे, हम तो नाराज हुए हैं। देखिए तो सही किस तरह इल्जामात की बारिश कर दी है उन्होंने। उधर जवाब दे, मैंने भी नौकरी गुड़ाना जे। कदी आन जा रहे, कदी आन जा रहे, उधर जवाब दे। अच्छा हकीम साहब प्लीज ये तमाशे ना करें, मेरी बात का जवाब दे। आप लोगों पे एक बड़ा इल्जाम ये भी है कि आप नौजवानों को बाज मखसूस किस्म की बीमारियों का डरावा दे के, उनको डरा के लाखों रुपया ईंट लेते हैं। इसका क्या जवाब है? ये भी इल्जाम है भाई, ये भी इल्जाम है। इल्जाम है ये। हम तो नौजवानों की इस्लाह चाह रहे होते हैं, हम कभी भी उनको राह रात से हटाने की कोशिश नहीं कर रहे। क्या इस्लाह कर रहे हैं आप नौजवानों की? अगर बिलफर्ज महाल कोई ऐसे मसाइल हैं भी तो नौजवानों को मुस्तनिद मुआलिजीन के पास जाना चाहिए। लो भाई, अगर ऐसे लोगों ने भी हमारे पास नहीं आना तो हम क्या फिर राख वाली शकरकंदी लगा ले? हमारे भी तो बच्चे हैं, हमने भी तो पालने हैं। अपने बच्चे पालने के लिए लोगों के बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। यही करते हैं ये लोग, यही करते हैं। आप मुझे कह रही हैं यानी बच्चों की जिंदगियां खराब कर रहे हैं हम। भाई हम नाराज हो गए। हम नहीं, आप नहीं मानेंगे। हम अब हम नहीं मानेंगे। नहीं नीचे आ जा, नीचे आ जा। नहीं, दवाई बना रहा, मेरे पेट में दर्द हो रही दवाई। अब आप हमें सामने आके शक्ल दिखाएंगे भी तो हम नहीं हंसेंगे, हम नाराज हैं। हकीम साहब
आप नानी अम्मा के घर नहीं आए हुए, कटहरे में खड़े हैं। भाई कटहरे में खड़े हैं तो कटहरे में खड़े करके हमें सरेआम जलील तो ना कीजिएगा। दलील नहीं कर रहा, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपको जवाब देने। लोगों की सेहत का मामला है। भाई यूं तो पाकिस्तान के और बहुत से शोबों में बिगाड़ पैदा हुआ है। आपने लाजिमन एक मोअज़्ज़िज़ हकीम को ही कटहरे में खड़े करके जलील करना था, आप इनको भी तो यहाँ खड़ा कर सकते थे। ये कोई कम तो नहीं है, रिश्वत लेते हैं अपने बच्चे पालने के लिए और दूसरों के बच्चों का इनको भी तो ख्याल नहीं होता। मैं नहीं लेता रिश्वत। ये तो बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहा है, इसीलिए इसकी सफेदी मर गई है। हकीम साहब इन्हें तो कोई फकी दियो, ये रिश्वत लाके भूल जाता जी। तो ऐसी कोई बात नहीं फिक्र वाली। देखिए हमारे क्लिनिक पे उस्तुकुद्दूस पड़ी हुई है, हम वो लाके इसे देती है, उससे हाफिजा तेज हो जाएगा। आप फिक्र ना कीजिए, इजाजत दीजिए हमें। की गल नहीं, खलो के गल नहीं करते। ये सवेरे सवेरे ना कई बार नाल दी दुकान खोल ली। देखिए अब हमें चोर भी बना दिया इन्होंने। चोर नहीं है तुम बंदे मारते हो, कातिल हो तुम। यानी कातिल कह दिया, कातिल बना दिया हमें। हम नहीं ठहरे थे यहाँ, हमें कातिल बना दिया इसने। हम एहतजाज करेंगे, हम अपने मोहल्ले से सब लोगों को इकट्ठा करके इधर लाएंगे। हमें देखें ये कातिल बना रहे हैं। हकीम साहब आराम से खड़े हो, क्या कर रहे हैं आप? ये तो डांटते भी है। हकीम साहब ए उस तो खुदूस ते अब्दुल कुदूस आपस में की लगते ने? वही जो अजीजुर रहमान चंद और अमानत चंद लगते हैं। उनका तो आपस में कोई ताल्लुक नहीं, तो इनका भी आपस में कोई ताल्लुक नहीं। हम पागल जरूर हैं, हमें बेवकूफ न समझें। अच्छा हकीम साहब एक बात बताएं, चले आप इलाज के मामले में आप एलोपैथी को फॉलो करने के कायल नहीं है, कम से कम तशखीस के हवाले से तो आप कोई ना कोई, मैंने नहीं सुना कि कभी किसी हकीम ने कोई टेस्ट करवाया हो किसी लेबोरेटरी से, करवाया है कभी? टेस्ट हो जाता है ना, दवाई जब मरीज को देते हैं तो टेस्ट खुद ही हो जाता है। मरीज अगर दोबारा हमारे पास आए तो इसका मतलब है दवाई ठीक है, अगर अल्लाह के पास चला जाए तो इसका मतलब है दवाई गलत है। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। या अल्लाह करम। ये होता है एकदम सरप्राइज देना। अच्छा, एक तो सादा सरप्राइज होता है, एक होता है एकदम सरप्राइज। सर मैं समझा कोई हॉरर फिल्म शुरू हो गई। मुखबरियां हैं मेरे पास, वो एकदम सरप्राइज दिया कि सड़ाने लगा। अरे पाजनैद की मेहरबानी, सच में पाजनैद है अच्छा आदमी, दिल का अच्छा। हाँ यह है दिल का अच्छा आदमी है। मुझे फील कर लेता है कि चलो कोई बात नहीं है, अगर मुखबरियां तो सुना ले, ये वरना टोक देता। इसलिए मैं पक्का कर रहा हूँ कि टोक ही न दे। जी पहली मुखबरी कुछ यूं है कि अगर कबल अज वक्त इलेक्शन हुए, गो जिनका चांस बहुत घट है, मगर मुखबर बताता है कि अगर हुए कबल अज वक्त इलेक्शन तो उसमें पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान सीट एडजस्टमेंट होगी जी, जिसके मुतल्लक मीटिंगें मुलाकातें चल रही हैं, गुफ्तो शदीद हो रही है। इमरान खान कह चुके हैं कि मैं और बिलावल एक ही कंटेनर पे खड़े हो सकते हैं। हाँ जी, इसी जुमरे में दोनों पार्टियों के जो लोग हैं वो आपस में मुलाकातें कर रहे हैं और मुखबर बता रहा है कि ये सिंध में पंजाब में इस तरह की एडजस्टमेंट होगी कि भाई जी तुम उधर ना खलोवो, असीं इधर नहीं खलोंदे, इस तरह का इस तरह का हो रहा है कि उधर तो आडा कुछ नहीं, इधर साडा कुछ नहीं। इस तरह का फिर पंजाब में पीपल्स पार्टी का कुछ नहीं है, सिंध में पीटीआई का कुछ नहीं यार है। इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में, इस तरह के काम हो ही तो फिर इस तरह होता है ना सीट एडजस्टमेंट। उस जुमरे में कमर ईमान कायरा साहब और बिलावल साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से, और पीटीआई की तरफ से इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब एक्टिव हुए हैं। ये चार लोग हैं। मुखबर बताता है कि पंजवें को ये कंसन में खबर नहीं होने दे रहे। अगर पांचवा बंदा को करीब आता भी है ना तो उसको कह देते हैं कि भाई जी जरा उधर चले जाओ, इलेक्शन के कीमे वाले नाम जिहड़े ने उन्हां दा बंदोबस्त कर डिश
मैया मुखबरी है ना जरा, इसलिए सप भी मैया हुआ। अपने जो खादमे अला पंजाब है, मुखबर बताता है कि एक दिन हमें गुस्से गर्मी में किसी सेक्रेटरी साहब को डायरेक्ट फोन मिला बैठे। अच्छा। होता है ना वजीर आला या अपने पीए से कहता है या किसी अपने सेक्रेटरी से कहता है कि मिलाओ फलां सेक्रेटरी को, नहीं गुस्सा चढ़ के तो फिर उदल पुदल हो जाते हैं ना। लजी डायरेक्ट फोन जब गुस्से गर्मी में मिलाया है सेक्रेटरी किसी को, तो सेक्रेटरी ने उठा लिया, उसके महमो गुमान में भी नहीं था कि डायरेक्ट ही फोन कर देने वजीर आला पंजाब, आई मीन खादमे आला। लो जनाब, जब उन्होंने फोन सुना सेक्रेटरी साहब ने, उसके ये में आया कि कोई किसी का काम शाम होगा, तो उसने फोन किया, हेलो हाँ भाई क्या बात है, तो आगे से कहते हैं कि मैं शहबाज शरीफ बोल रहा हूँ। उसने आगे से घबरा के कह दिया कि कौन शहबाज शरीफ। बात करने वाली के शहबाज शरीफ को बंदा कह दे कौन शहबाज शरीफ, इसमें तो फिर बंदा यही कह सकता है ना कि अरबी बोलने वाला शहबाज शरीफ। एक तो जर्मनी बोलने वाला है ना, मैं अरबी बोलने वाला शहबाज शरीफ। तो मुंह से जब निकल गया उसके सेक्रेटरी के कौन शहबाज शरीफ, तो बेचारे चेप गए। आगे से कहते हैं कि ओए खादमे आला पंजाब। तो उस बंदे ने फिर नहीं बात गौड़ी। यकीन मानोगे कि मुखबर कहता है कि उसने फोन बंद कर दिया। जब दिन अब पहले पता नहीं घबराहट में बंद किया है या इसलिए बंद किया कि कोई हमें शरारत कर। इस फोन के बाद वो बंदा रिजाइन कर गया या उसका तबादला हो गया? ना उसका तबादला हुआ ना रिजाइन हुआ है, उसी दफ्तर में वो 2 से 3 बजे तक कान पकड़ता यार बेचारा घबराया हुआ फिर रहा होगा, मुझे क्या पता क्या हुआ उसका। डिश 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 हाय हाय। लजी 2 सियासत के बड़े खानदान पाकिस्तान के, जी, एक की बेटी और एक का बेटा, जिनकी शादी की अफवाहें फैल रही थी कि होने जा रही है, और फिर एकदम गायब हो गई वो बात। मगर मुखबर बता रहा है कि अब वो शादी होने को जा रही है। चूंकि मुखबर मेरा जाके किसी वक्त ना बाजियों वाली दुकान पे मास्टर के साथ बैठ के सिगरेट पीता है, तो वो कह रहा था कि मास्टर साहब बता रहे थे कि यार एक बुकिंग मिल रही है शादी की, क्या मैं पकड़ लूं? तो मुखबर ने पूछा किस शादी की बुकिंग, तो उसने उन दोनों बड़े खानदानों का नाम लिया। कुछ थोड़ा बहुत तो आइडिया हो रहा है कौन है खानदान दोनों। बस मैं हल्का सा इशारा दे देता हूँ कि ये दोनों जो बच्चे हैं ना, लड़की और लड़का, ये यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ते रहे। डिश डिश डिश। साफ जरा घबराया हुआ है। भला किस बात से? किस बात से? कि दोनों पार्टियां नहीं मान रही। मुखबर बताता है कि हैदर रिजवी साहब MQM के साबक बड़े करता धरता ऐनक लगा के जो बड़ी खस्तालीक उर्दू बोलते थे, नस्तालीक उर्दू बोलते थे, वो एकदम गायब हो गए हुए। आप सब जानते ही हैं, पता नहीं कितने अरसे से पता नहीं किधर है। मुखबर बता रहा है कि वो अब दोबारा कराची की सियासत में इन होना चाह रहे हैं। और दोनों पार्टियां जो इस वक्त मौजूद हैं कराची में, एक पाक सरजमीन पार्टी और एक फरूक सत्तार एंड कंपनी MQM पार्टी, दोनों के साथ वो राब्ता कर रहे हैं कि किसी ना किसी पार्टी की एक तरफ से इशारा मिले तो मैं उसमें घुस जाऊं। जैसे गार्ड की तरफ से नहीं रेलगाड़ी का इशारा मिलता है जो तो बंदा घुस जाता है। मगर मुखबर बताता है कि दोनों पार्टियां अभी हाँ नहीं कर रही, चूंकि दोनों पार्टियों को ये है ये इनमें के भाई जी इन्हू रख लिया ना देने आंदी ही फड़िया जाए, फिर हमें किथे दिया तरीखा भुगतते फिरांगे। पहले हमारे पास बहुत काम पड़ा हुआ है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, यादें माजी के हवाले से आज डिस्कस मैं करना चाह रहा हूं कि वालदैन जो हैं, माएँ जो हैं,
ये अपने छोटे छोटे बच्चों को किस तरह पालती थी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब नजर नहीं आती, खास तौर पे बड़े शहरों में। गांव में अभी भी वो चीजें भी मौजूद हैं कहीं कहीं, मगर ज्यादातर वो चीज, वो कल्चर खत्म होता जा रहा है। मिसाल के तौर पे जो बच्चे हैं ना जी, जब ये पैदा होने वाले होते थे ना, तो नानियां दादियां बच्चों के लिए लंगोट सी के भेजा करती थी अपनी बेटियों को। अब जिसकी जगह पे पैम्पर निकल आए, बहुत ज्यादा ऐसा होता था। और उसके बाद फिर बच्चा थोड़ा सा जब बड़ा हो जाता था जी, तो उस हवाले से भी एक बड़ी प्यारी याद है, याद माजी है कि बच्चे के सर को तेल लगा के उसको सुआंदा वाया जाता था, यानी चीर मांग जिसे उर्दू में कहते हैं, वो जरूर निकाली जाती थी। और वो तेल जो है वो अक्सर पुटपुटी से ऐसे नीचे चोवी जाता था और बच्चा जो है ना वो तिलकना सा हुआ होता था। उसके दो फायदे नजर आते थे। अब पता नहीं वो फायदे तेल की वजह से ही होते थे कि ये जो अब अक्सर बाल खत्म हुए लोग नजर आते हैं ना, आई मीन गंजे, ये नहीं थे होते, बहुत घट होते थे। वैसे तो ये कहते हैं जी कि खुराक ऑयली हमने खानी छोड़ दी है, ये अंदर की खुश्की की वजह से बाल चढ़ जाते हैं। मगर मेरा ख्याल है कि वो सरों के तेल का ये बड़ा फायदा होता था कि बच्चों के बाल बड़े घने होते थे और बड़े सेट रहते थे, बेहतरीन तेल के साथ बैठे रहते थे। और बच्चा बस्ता लटका के कंधे के ऊपर स्कूल जाता, इतना प्यारा लगता था। हाय हाय। और फिर तेल लगाने के साथ साथ आंखों में सुरमा भी डाला, जो आज खत्म हो गया। तो देखो तुम छोटे छोटे बच्चों ने कितनी कितनी मोटी ऐनकें लगाई होती। एक उस सुरमे की ब्रांच आपको बताऊं जी, उसी सुरमचू के साथ बच्चे के मुंह के ऊपर एक काला टिक्का लगाया, नजर ना लग जाए, इधर या इधर के बच्चे को नजर ना लगे। और खास तौर पे गौरी को तो जरूर लगाते। मुझे वो सफेद सुरमा लगता था, सफेद टीका। जो है सफेद उसको सुरमा क्यों कह रहे हो? कहो मुझे वाइटनर लगता था, काला तो नजर ही नहीं आता था ना सुरमा। हाय हाय हाय। बड़ी बड़ी प्यारी माएँ ऐसे ऐसे बच्चों से लाड किया करती थी, उसका बना सवार के अपने ज़हन के मुताबिक। चूंकि ये ब्यूटी पार्लर, ये फैशन डिजाइनिंग, ये वो उस वक्त थी नहीं। जिन घरों में झूला नहीं होता था तो माएँ चारपाई के साथ कपड़ा बांध के उसमें बच्चों को, वो कितना खूबसूरत झूला और पालना हुआ करता था। उस कपड़े के झूले को वाला पंजाबी में क्या कहते थे गौरी? चली। चली। तो वो बैठ के ना खवातीन अपने काम भी साथ किया करती थी और साथ पाँव रख के ना उसके साथ ऐसे ऐसे करती रहती थी, वो पैर के साथ उसको हिलाती रहती थी और बच्चा सोया रहता था। या वो पाँव इधर करके अपना काम को और करने लगती थी, बच्चा रोना शुरू हो जाता था और फिर फटाफट हाय हाय हाय। सर ये रिवाज भी कम होता जा रहा है कि जो बच्चे का सर बनाना, कि नीचे कोई सख्त चीज रखना, कोई प्लेट रखना, या स्लेट या प्लेट रखती थी माए, या थैली सी बना के ना बीच में चावल भर के तो वो सर के नीचे रखती थी, बच्चे का सर गोल हो। वो जिसके सर के नीचे चावलों वाली थैली रखते थे ना, वो बासमती बच्चा। अच्छा, आप तो प्लास्टिक के फीडर्स है ना, तुम्हें याद होगा शीशे का फीडर और दोनों तरफ निप्पल लगे हुए, याद है? क्या कहने, वो कश्ती की तरह दोनों तरफ से जरा क्यों, दोनों तरफ से क्यों निप्पल लगे होते? यार ये किसी वक्त अल्लाह पाक जड़वा बच्चा भी दे देता, अगर कट्ठे डाल के बीच में फीडर एक रहा यार उसकी वजह ये होती थी कि फीडर धोने में आसानी होती थी। जी सबसे नालायक बात इसने बताई, फीडर एक पासे मुंह हो तो नहीं धोया जाता, नहीं जाता, ठीक तरह नहीं धोया जाता। बेहतरीन तो ये तो अब ब्रश आ गया ना, फीडर धोने वाला ब्रश आ गया। भाई जी निप्पल अक्सर बंद हो जाता था, बिच मलाई फंस जाती थी, मेरे को अगर माए निप्पल को खोलने के लिए फीडर परे करती थी तो बच्चा रोना शुरू हो जाता, इसलिए फटाफट परता के दूसरी तरफ से निप्पल इसके मुंह में डाल देती थी और बाद में निप्पल खोल लेती थी। बहुत सहूलतें आ गई हैं जीजी। आइंदा नस्ल की मां तो ये भी नहीं कह सकती कि पुत्रा तेनू मैं सुखी जगह ते पौंदी रही है ते आप गिल्ली जगह ते सौंदी रही है। पुत्र भी तो ऐसे आ गए, पुत्र ने मां को कह देना गर्मी सी तो आप गिल्ली जगह ते सौंदी रही मां, तू केड़ा आसान कीता। हां जी, नाले ये भी कह सकता है पुत्र आगे जुगतन के अम्मा जी केड़े छप्पड़ ते कंडे ते सौंदी रही।
नाज़रीन यहाँ मिलने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अफ्रीका की एक कहावत है कि अगर दरख्त टेढ़ा लगा हो ना तो इसका मतलब ये होता है कि ये जब छोटा सा पौधा था तो इसे किसी ने सीधा नहीं किया। आजकल मैं बिगड़े हुए बच्चों को देखता हूँ ना तो मैं सोचता हूँ कि यार वालिदैन ने इनकी तरबियत ठीक नहीं की। वालिदैन के पास टाइम ही नहीं होता। यार खुदा के वास्ते ये आपका मुस्तकबिल है, कौम का मुस्तकबिल है, मुल्क का मुस्तकबिल है। हाँ, इनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल। अपना हर मसला, अपनी हर कुताई, अपनी हर खामी, अपने तजर्बात बच्चों को बताने चाहिए ताकि वो उसके मुताबिक उसको मद्देनजर रखते हुए फिर खुद अच्छी जिंदगी गुजार सके। मैंने तो अपनी सारी जिंदगी के वाकयात, हरकत और सकनात अपनी जो है ना वो अपने बच्चों को सुनाई है मैंने कि मैंने ये किया, ये गलती की, ये गलती की, ये गलती की, ये गलती की। इसलिए अब मेरे बच्चे मेरी इज्जत ही नहीं करते। अब मेरा मतलब है एहतराम करते हैं, एहतराम। यार हमारे पापा ने हमें गाइड किया है। अपनी खामियां इसलिए बच्चों को दिखानी चाहिए कि वो फिर उन खामियों से बचे, वो कहीं वो वाली गलती ना करें। बच्चों को टाइम देना चाहिए। असल में जुनैद मसला सिर्फ टाइम का ही रह गया हुआ है। बेसब्री इतनी हो गई हुई है, शॉर्टकट ऐसा हमने अपना लिया हुआ है कि फटाफट हम अमीर भी होना चाहते हैं, फटाफट काबिल भी बनना चाहते हैं, फटाफट बड़े भी होना चाहते हैं कि फटाफट बच्चे शच्चे भी सारे ब्याह जान और बेचे सी काला जिहा कोट पा के भी फिर रही है निकला के। असल में माँ बाप हो या बच्चे हो, उनके जो टाइम का अजदा है ना, जो टाइम को निगल जाता है, वो ये अजाब है। सीधी बात। तो क्यों नहीं छोड़ देते? रोज पर से भी बेइज्जती कराते हो, खुद भी टेंस रहते हो। इसको खुदा ऊपर से एक आइदहानी मान इसने 3 रखे हुए। मैंने 2-3 बार कहा है, मैंने कहा 3 मोबाइल किस लिए रखे हुए? जो जिसने 3 बंदों ने करना है वो इको पे कर लेंगे। मोबाइलों का आपस में भी तो दिल लगा रहता है ना। अकेला मोबाइल बोर हो जाता है। हाँ, नहीं खबरों की तरफ आए जी, बिस्मिल्लाह आ जाए। फिर अगर आपकी यही सोच है तो फिर खबरों की तरफ ही आए। जी सुने, आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ कहते हैं अरकान पार्लियामेंट पाकिस्तान के दहशतगर्द होने का तासुर खत्म करें। हाय 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 हाय, वो कहाँ से तासुर खत्म करें? वो असेंबली में जाएंगे तो तासुर खत्म करेगा। वहां पे तो रोज कोरम ही नहीं पूरा होता। जैसे नलायक तालिब इल्म का मैट्रिक नहीं ना पूरा होता, इसी तरह हमारी असेंबली का कभी कोरम पूरा नहीं होता। असेंबली में कई कुर्सियां तो ऐसी लगी हुई हैं बेचारी जो तरस रही हैं कि शायद हम पे भी कभी कोई बैठेगा। बल्कि उन कुर्सियों ने तो अपने दुकान मालकान को फोन भी किया कि भाई जी सानू आके ले जाओ, असीं इत्थे वेलियां ही खलोते ही हां। और यार वैसे भी अरकान असेंबली ऐवान के अंदर एक दूसरे को दहशतगर्द करार देने पे तुले हुए हैं ना, उनके पास वक्त ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। जो अगर दहशतगर्द ने एक दूसरे को करार दे रहे हो तो जुगती हुए होते हैं। अमान से पिछले 8-10 साल में थिएटर से ऐसी जुगत नहीं रिलीज हुई जैसी जैसी असेंबली से हुई। मुझे तो कई असेंबली के अरकानों के मुंह अमान से अमानत चंद, अमानुल्लाह, अफ्तार ठाकुर लगने शुरू हो गए। बल्कि तुम देखना कि कुछ अरसे बाद इस्लामाबाद की सड़कों पे जिस तरह लाहौर में स्टेज ड्रामे के बैनर और होर्डिंग नहीं लगे होते, इसी तरह वहां पे इस तरह के असेंबली के इजलास से पहले लगा करेंगे। उसमें तलाल चौधरी, मुराद सईद वगैरह सबकी तस्वीरें लगा करेंगे। और ऊपर लिखा होगा कॉमेडी के शहंशाह, साथ कड़कती बिजलियां, और कड़कती बिजलियों के साथ ही आबिद शेर अली की फोटो बनी है। और वहां से गुजरते हुए लोग सोचेंगे कि बिजली तेरे को बनी नहीं है, कड़काउन की डे है भाई। वैसे वाकई ये आर्मी चीफ ने ठीक कहा है, दहशतगर्दी जिस कदर तेजी से खत्म की है फौज ने, उस कदर तेजी से या जिम्मेदारी से हुकूमत ने दहशतगर्दी का तासुर खत्म नहीं किया। और यह पाकिस्तान के दहशतगर्द होने का ये इल्जाम है उसे खत्म नहीं किया। इनको चाहिए उस तरफ भी तवज्जो दे। इतना पैसा लगा है, इतनी मेहनत लगी है, इतनी जानें कुर्बान हुई हैं, को अपनी लड़ाइयां छोड़ के तो इस तरफ भी आए। सही। क्या है दूसरी खबर, मुझे जरा बताओ ना आज। जी साहब सुने, दवाइयों को टेस्ट करने वाली लेबोरेटरी का कंप्यूटर सिस्टम फ्लॉप,
अरबों की अद्वियात अस्पतालों के स्टोर्स में पड़ी खराब हो गई। मुस्तहिक मरीज दर बदर। अरबों की दवाइयाँ ज्यादा हज के दिनों में खराब होती है, क्योंकि हाजी बहुत ज्यादा होते हैं, तो अरबों ने जितनी भी दवाइयाँ खरीदी होती है ना, वो फिर तकसीम उस तरह नहीं बेचारे कर पाते, वो फिर खराब हो जाती है। अजीज साहब, ये दवाइयाँ हमारी हैं और अरबों रुपए की हैं, अरबों की नहीं है। अच्छा, नहीं तो यहाँ पे तो कोई ये नई खबर नहीं है, यहाँ तो बेड़े गर्क हुए ही हो। इसको दोबारा लिख के किस लिए अखबार वालों ने अपनी शियाई आया की? दवाई तो जाया हुई है, स्याही भी जाया हुई। वैसे इस तरह की जब भी हेल्थ के महकमे की कोई खबर आती है ना, तो मेरा जी चाहता है अल्लाह ना करे ये हरकत करने वाले और इस तरह की गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने वाले एक एक कारी बीमार हो गए अस्पताल जरूर दाखिल हो। इनको समझ आ जाए कि माड़े बंदे के साथ, बल्कि माड़े बंदे के साथ ही होनी है, इनके साथ तो उधर भी फिर कुछ नहीं होनी, क्योंकि ये तो अफसर लोग होते हैं, इनको तो वहां पे फिर प्रोटोकॉल मिल जाने। ये या किसी जगह पे लोग के माड़े आदमी के साथ जो अस्पताल में होती है वही देख ले। बड़ा ईमान से दुख होता है कि देखो ये अब अरबों रुपए की दवाइयां जो हैं वो इसलिए ही आया हो गई है कि चेकिंग करने वाली मशीनें ही आया पड़ी हुई हैं। वाह 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 वाह, यानी एक सोनी उतसुती उठी। और इस कहावत का जितना जिम्मेदारी से गौरी को एहसास है ना, हर किसी को नहीं। कभी तुम गौरी को सोते पे उठे देख लो, अब मैन से पर जाइए मारी कितनी देर बेचारी दिल पे हाथ रख के सांस लेती रहती। अल्लाह खैर करे, तो निकलेगी तो ठीक हो जाएंगे। अच्छा अजीज साहब, खबर सुने। पहले भी खबरें ही सुन रहा हूँ, पहले मैं कौन सी लता सुन रहा हूँ? ये आपकी फेवरेट खबर है इसलिए कह रही हूँ। अच्छा, क्या है खबर? अमरीकी शहर फिलाडेल्फिया में अमरीकी खातून अव्वल मिशेल ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप की जलसे के दौरान झड़प, एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। चलो है ये को ट्रंप की को एक भी को चज की हरकत औरत के साथ लड़ पड़े, ऐसा नैश आदमी है। और वो बेचारी पहले कितनी देर बर्दाश्त करती रही है। फिलाडेल्फिया से एक दोस्त ने मुझे फोन करके बताया कि उसकी बातों का जवाब नहीं था इसके पास ट्रंप के, तो उसके खामद को जुगते करनी शुरू हो गई। कहता ओबामा वेख लो जिवें इंजन च कोला पाने वाला बेलचा हुंदा, उसने बर्दाश्त किया। फिर कहता ओबामा वेख लो जिवें लंडे की दुकान ते टंगे लम्मा कोट हुंदा, उसने फिर बर्दाश्त किया। फिर कहता जी ओबामा वेख लो सुआह च खेडण वाला कुकड़ हुंदा, उसने फिर बर्दाश्त किया। तो कहता जी ओबामा वेख लो बर्फ दा ब्लॉक खिंचण वाली कैंची हुंदी। अब बर्दाश्त नहीं किया, एंजॉय किया, शौहर को जुगते लग रही थी। नहीं यार, वो लव करती है ओबामा के साथ, वो चुप करके जाने लगी है तो फिर पीछे से आवाज लगा दी है ओबामा वेख लो जिवें बच्चियां नूं डराने वाला सप हुंदा है। इस जुगत पे फिर वो वापस परती है और उसने जुत्ती ला के तो शुरू हो गई है। ट्रंप वेख लो जिवें पानी वाला दुध बेचने वाला गुजर हुंदा है, ट्रंप वेख लो जिवें मार खाने वाला रेसलर हुंदा है, ट्रंप वेख लो जिवें हज च फ्रॉड करने वाला वजीर हुंदा है, ट्रंप वेख लो कुत्तियां दे कन्नां नूं शरेश ला के बेचने वाला भाई हुंदा है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।